ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2024 ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਪੇਪਰ 1 ਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। तो चलो दोस्तों, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਪਰ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਣਿਤ ਹੈ, ਮੈਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ, ਕਿ ਪੇਪਰ 1 ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 1 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਈਟੀਟੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 1 ਦੇਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ठीक है ना, ताही अगे जाके तुसी ईटीटी का पेपर दोगे, है ना, पेपर भरोगे ईटीटी का। क्लास 1 तो लैके क्लास 5वीं तक ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 1 ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ 1 ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸੀਡੀਪੀ, 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਈਵੀਐਸ, 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਣਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 2 ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 150 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ? 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ। 2.5 ਆਵਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 150 ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ठीक है, इस तो बाद अगर असी मैथ की गल करिए, भाई मैथमैटिक्स की जेकर असी गल करिए, इसनूं भी बच्चे 2 हिस्सों के विच तोड़िया गया है। ठीक है, 2 हिस्सों च किवें तोड़िया गया है कि एक तो हो गया साडा कंटेंट वाला मैथ, कंटेंट वाला मैथ हो गया। ठीक है, और एक हो गया मैथ की पैडागोजी। ठीक है, एक हो गई मैथ की पैडागोजी। ठीक है, तो 2 हिस्सों के विच तोड़िया गया है। ਹੁਣ देखो किया तो यह जाता है कि 15 नंबर का थानू कंटेंट आएगा और 15 नंबर की थानू पैडागोजी आएगी। ठीक है, किया तो वैसे यही जाता है। जेकर तुसी 2023 का पेपर वेखोगे, पिछले साल का जेकर तुसी पेपर देखोगे तो उहदे विच तुहानू पैडागोजी दे देखो बच्चे 8 तो 9 सवाल वेखण नूं मिलणगे। आई थिंक 9 सवाल सीगे टोटल, और 9वां सवाल भी ये मन के चलो कंटेंट का भी बन सकता हो, तो ये मन के चलो 8 तो 9 सवाल तुहानू पैडागोजी दे पूछे गए सन, और बाकी जिहड़े सवाल सीगे वो कंटेंट मैथ दे सीगे, मतलब 21 तो 22 सवाल तुहाडे मैथ दे कंटेंट दे सवाल सीगे। ठीक है, बाकी जो स्टैंडर्ड साडा स्लेब पैटर्न होंदा है वो यही होंदा है कि 15 सवाल होणगे कंटेंट दे, 15 होणगे पैडागोजी दे, बट ये अलग अलग भी हो सकते ने। मैं ये नहीं कह रहा कि हुण तुसी कंटेंट मैथ ज़्यादा पढ़ना और पैडागोजी घट पढ़नी है, तुसी 15-15 के हिसाब नाल ही पढ़नी है, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-21 हर पेपर दे विच हुंदा ही हुंदा है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है ना। मैथमैटिक्स 30 नंबर का होएगा और ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, तो टोटल तो 30 नंबर ही होणगे, लेकिन किस दे किन्ने होणगे ये कन्फर्मेशन मैं तुहानू नहीं दे सकता। ये मान के चलो कि 19-21 थोड़ा बहुत होएगा ही होएगा, कोई वड्डी गल नहीं कि 15 विचों 15 नंबर भी आ सकते हैं, कि 15 आ जाएंगे कंटेंट दे, 15 आ जाएंगे पैडागोजी दे। ठीक है, बट तुसी की करना है जी, तुसी दोनों नू वधिया तरीके नाल पढ़ना है।
ठीक है। तो देखो बच्चे पैडागोजी तो सेम ही रहूगी, लैवल भी इसका बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट ही होने वाला है। लेकिन अगर असी मैथ की गल करिए, पहला असी गल करांगे पेपर 1 की। तो पेपर 1 दे विच जिहड़ा मैथ आउंदा हुंदा जी, उस दे विच ज़्यादा तुहानूं की मिलेगा जी, नंबर सिस्टम। पेपर 1 की जेकर मैं गल करा ना, तो ज़्यादा सवाल किस दे ने, नंबर सिस्टम दे, कि बेसिक नंबर किद्दां दे हुंदे ने, प्राइम नंबर किहड़े ने, ठीक है जी, ईवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गए। थोड़े बहुते सवाल तुहानूं एलसीएम दे वेखण नूं मिलणगे कि एलसीएम की हुंदा है। इस तो इलावा कैलकुलेशन वाले सवाल होणगे कि सिंपलीफाई करो जी, ये कोई एक कैलकुलेशन दित्ती होएगी, उसनूं सिंपलीफाई करन नूं कहेगा। और बिल्कुल बेसिक ज्योमैट्री दे सवाल, ठीक है। बेसिक ज्योमैट्री मतलब तुहानूं ट्राईएंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज पूछेगा, स्क्वेयर की प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, रैक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पूछ लेगा। तो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज के उत्ते सवाल होंगे ने, मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं होएगा, तुहाडा कंसैप्ट चैक करेगा कि तुहानूं ये चीज़ पता है या नहीं पता, ठीक है। तुहानूं सॉल्व करन नूं बहुत घट कवेगा। हाँ, एक दो सवाल सीगे जिहड़े एरिया पुछया होएगा जां कई वारी वॉल्यूम पुछया होएगा किसी चीज़ का, बाकी कंसैप्चुअल सवाल ज़्यादा होंगे ने पेपर 1 दे विच। ओबीअस जी गल है जी, तुसीं क्लास 1 तो लैके क्लास 5 तक नूं पढ़ाउणा है, लैवल भी फिर यही रहूगा, ठीक है। सिंपल सिंपल तुहानूं मैथ पूछया जाता है, कंसैप्ट बेस्ड तुहानूं मैथ पूछया जाता है। तो अगर तुसीं पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो मेरी मन्नो तो तुसीं नंबर सिस्टम नूं वधिया तरीके नाल तैयार करो, तुसीं एलसीएम एचसीएफ चंगे तरीके नाल पढ़ो, ठीक है। और बेसिक ज्योमैट्री की तुहानूं वधिया नॉलेज होनी चाहिए है, ठीक है जी। बेसिक ज्योमैट्री की तुहानूं वधिया नॉलेज होनी चाहिए है जी, ठीक है। बेसिक ज्योमैट्री कहूँगा, डीप वाली ज्योमैट्री नहीं पढ़नी, थोड़े बहुत लाइन एंड एंगल वगैरह पढ़ लो, ठीक है। पॉलीगोन वगैरह पढ़ लो की हुंदा है। इस तो इलावा मैंसुरेशन वाला पार्ट जिहड़ा हैगा, ठीक है, त्रिकोण अपना की कहंदे उहनूं, एरिया वगैरह कढ़ना, खेत्रफल वगैरह कढ़ना, तुसीं वॉल्यूम वगैरह कढ़नी है, वो थोड़ी बहुत अगर सीख लोगे तो तुहाडा पेपर 1 का मैथ जिहड़ा है, कंटेंट वाला पार्ट जिहड़ा वधिया तरीके नाल हो जाएगा। उस तरीके नाल अगर असीं पैडागोजी की गल करिए, तो पैडागोजी दे विच भी कोई ज़्यादा औखा नहीं आ रहा। पैडागोजी का जिहड़ा ईजी टू मॉडरेट वाला पार्ट है, उही जिहड़ा है तुहानूं पेपर 1 दे विच पुछया जाऊगा। क्लीयर? तो आई होप तुहानूं पेपर 1 का पता लग गया होएगा कि भाई पेपर 1 किस तरीके नाल बनदा हुंदा है, ठीक है। तो ये पेपर जो ईटीटी वाले वास्ते है। उस तरीके नाल बच्चे अगर असीं गल करिए पेपर 2 की, हुण इसकी अगर मैं एग्जाम की गल करा, तो कंपैरिजन अगर मैं पेपर 1 दे नाल करा, तो यह पेपर जिहड़ा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट होवेगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। जिवें पेपर 1 जिहड़ा सीगा वो ईजी टू मॉडरेट सीगा, और पेपर 2 जिहड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहूँगा मैं, एज कंपैरिजन टू पेपर 1, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 जिहड़ा है ये वो स्टूडेंट्स वास्ते है जिन्होंने बीएड की हुई है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ बीएड है ਉਹ पढ़ सकते हैं जी ये वाला पेपर 2 है ना। है भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है भी PSTET है, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर ये पेपर क्वालीफाई करोगे तो ही कल नूं जाके तुसीं मास्टर काडर का पेपर दोगे, ठीक है। ये कह लो कि क्लास 6 तो लैके क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाना, तुसीं अगे जाके क्लास 6 तो लैके क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाना है। और हो सकता है कि कल नूं तुहाडी प्रमोशन होके तुसीं लैक्चरर भी बन जाओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ +1 +2 ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ PSTET ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮੈਥ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੀਚਰ, ठीक है। तो इसका अगर सिलेबस की गल करिए तो देखो CDP, अंग्रेजी ते पंजाबी आ तीनों कॉमन ने, 90 नंबर पेपर 1 दे विच भी ने, पेपर 2 दे विच भी ने। ये तुसीं पढ़ना ही पढ़ना, भावें तुसीं पेपर 1 दे बच्चे हो भावें पेपर 2 दे हो, ठीक है। लेकिन अगर असीं गल करिए नैक्सट वाला पार्ट जिहड़ा कि सबजैक्ट स्पैसीफिक पार्ट जिसनूं असीं बोलदे हुंदे आ, तो अगर तुसीं मैथ अते साइंस दे स्टूडेंट हो, तुसीं BSc वगैरह कीती हुई है, तो तुसीं फिर एलिजिबल हो जी मैथ ते साइंस टीचर दे लई। इस दे विच तुहानूं सबजैक्ट स्पैसीफिक 60 सवाल पूछे जाणगे, और ये 60 सवालों के 30 सवाल तुहाडे मैथ के होणगे और 30 सवाल तुहाडे साइंस के होणगे। और जिहड़े 30 सवाल मैथ के ने, 30 सवाल जिहड़े तुहाडे मैथ के ने, इन्हां विचों भी उही 15 सवाल तुहाडे कंटेंट के हो गए और 15 सवाल तुहाडे किहदे हो जाणगे, पैडागोजी के, पैडागोजी के,
ठीक है ना। और जेकर मैं कंटेंट की गल करा तो देखो पैडागोजी तुहानू पेपर 1 ਲਈ भी पढ़नी पैनी है, पेपर 2 ਲਈ भी पढ़नी पैनी है। पेपर 2 ਲਈ थोड़ा जिहा एडवांस लैवल ते जाना पेगा, तुहानू थोड़ा डीप पढ़ना पऊगा, ठीक है। और उस तरीके नाल अगर असीं कंटेंट की गल करिए तो पेपर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा सिलेबस नहीं बनता हुंदा। पूरा ये नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस तुसीं करना जे, पूरा सिलेबस तुसीं नहीं करना है। इस दे विच की चीज़ां ने पढ़न वालियां, एक तो एलजबरा अच्छे लैवल का पढ़ना बच्चे, ठीक है। ट्रिग्नोमैट्री के सवाल जिहड़े ने बनते हैं, क्योंकि 10th लैवल के ट्रिग्नोमैट्री भी तो आउंदी है ना, तो बेसिक ट्रिग्नोमैट्री के सवाल बननगे, ज्योमैट्री वधिया लैवल के सवाल बननगे, ठीक है। मैंसूरेशन के सवाल बननगे, मैंसूरेशन के सवाल आउणगे, नंबर सिस्टम के सवाल आउणगे। इस तो इलावा बेसिक अर्थमैटिक के भी 2-3 सवाल आ जाते हैं, जिस दे विच परसेंटेज रेशो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के सवाल होंगे ने, वो भी 2-3 तुहानू पूछे जा सकते हैं। बट लैवल जिहड़ा वधिया लैवल होएगा पेपर 2 का, ठीक है। तो जेकर तुसीं पेपर 2 ਲਈ तैयारी कर रहे हो तो आ सबजैक्ट तुसीं ज़्यादा वेखने ने, ठीक है। जेकर तुसीं पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो आ सबजैक्ट ज़्यादा देखने ने। इहदे विच ना तुसीं परसेंटेज ते रेशो भी जोड़ लो, परसेंटेज ते बेसिक बिल्कुल, रेशो का परसेंटेज ते रेशो का बेसिक, आ चीज़ां। और ये की करना, अर्थमैटिक भी करना जे। और आ वाले चैप्टर तो मेन ने, मतलब ये मन के चलो कि 15 विचों 10-12 सवाल तो इन्हां विचों ही आने ने, अलजबरा, ट्रिग्नोमैट्री, ज्योमैट्री, मैंसूरेशन ते नंबर सिस्टम। आ तुसीं जरूर पढ़ना जे। समझ गए गल नूं जी। हुण दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी किवें करनी है, हुण 40 दिन साडे तो बचे हुए ने, तो 40 दिनों के विच असीं तैयारी किवें करिए, तो उस लई दोस्तों असीं अपना ऑफलाइन बैच लैके आ रहे हैं। जेकर तुसीं चंडीगढ़ आ सकते हो, ठीक है, जेकर तुसीं चंडीगढ़ आ सकते हो तो सैक्टर 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨਮ ਦੀ ब्रांच है, तुसीं उत्थे आके तैयारी कर सकते हो अपनी। इस तो इलावा ये सिटियां विचों अगर तुहाडी कोई सिटी है, जिवें चंडीगढ़ तो हो गया साडा हैड ऑफिस, इस तो इलावा संगरूर तो अगर तुसीं बिलोंग करते हो, अमृतसर तो बिलोंग करते हो, गुरदासपुर तो बिलोंग करते हो, पटियाला है, इस तो बाद साडे कोलों दसूआ है, दसूआ ब्रांच साडी, इस तो इलावा जी खन्ना ब्रांच है, ਜਾਂ फिर कह लो नवा शहर ब्रांच है, ठीक है जी। ये सारिया साडियां ब्रांचिज ने, फिरोजपुर ब्रांच है जी। ये सारिया ब्रांचिज दे विच भी ये बैच जिहड़ा है शुरू हो रहा है। ऑफलाइन बैच हैगा जी, ऑफलाइन तुसीं पढ़ सकते हो। जेकर मान लो तुसीं इन्हां सिटियां दे विचों बिलोंग नहीं करते और तुसीं चंडीगढ़ भी नहीं आ सकते हो, तो घर बैठे भी तुहाडी तैयारी हो सकती है। यानी कि ये जिहड़ा बैच साडा होएगा ये ऑनलाइन भी होएगा, ठीक है। ऑफलाइन तो है ही है, ऑनलाइन भी होएगा, जिस दे विच लाइव क्लासिस मिलणगियां। जिवें तुसीं ऑफलाइन दे विच क्लास दे अंदर बैठ के पढ़ते हो, उस तरीके नाल ऑनलाइन दे विच की होएगा कि तुसीं मोबाइल अगे रखा होया है, लाइव पढ़ रहे हो। अगर तुहानूं कोई चीज़ समझ नहीं आती, तुसीं उस वेले टीचर तो पुछ भी सकते हो। लाइव क्लासिस होणगियां और उसका रिकॉर्डेड भी तुहानूं मिलेगा, ताकि अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो तुसीं दोबारा रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारियां क्लासिस लगभग ये मन के चलो 200-250 क्लासिस पेपर 1 प्लस पेपर 2 तुहानूं अवेलेबल होणगियां, ठीक है। पेपर 1 ते पेपर 2 दियां टोटल 250 क्लासिस होणगियां। पंजाबी ते अंग्रेजी दोनों मीडियम होणगे, पंजाबी मीडियम च भी करावांगे, अंग्रेजी मीडियम च भी करवावांगे तुहानूं, ठीक है। अगर तुसीं ऑफलाइन दे स्टूडेंट हो किसी भी ब्रांच दे विच जां फिर चंडीगढ़ दे विच, तां तुहानूं बुक्स भी प्रोवाइड कीतियां जाणगियां, किताबां भी मिलणगियां, तुसीं किताबां दे विचों भी नोट्स पढ़ सकते हो आपदे। अगर तुसीं ऑनलाइन स्टूडेंट हो, घर बैठ के तैयारी कर रहे हो, तो उस केस दे विच तुहानूं PDF स्टडी मटीरियल दिता जाऊगा, तुहानूं PDFs मिलणगियां, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट 5000 तो ज़्यादा तुहानूं क्वेश्चनस दिते जाणगे प्रैक्टिस करन नूं। जिवें मैथ के ज़्यादा सवाल हुंदे ने तां मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा होवेगी। इस दे विच टेस्ट सीरीज़ के सवाल भी होणगे, क्योंकि तुहानूं असीं 10 मॉक टेस्ट देने ने, 10 होणगे तुहाडे पेपर 1 दे, 10 होणगे पेपर 2 दे, तां 3000 सवाल तो यही हो गए साडे कोलों, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट परसनल मैंटोरशिप होएगी। अगर तुहानूं कोई भी डाउट हुंदा है, तुसीं डायरैक्ट टीचर नाल गल कर सकते हो। ऑफलाइन वाले बच्चे भी कर सकते हैं और ऑनलाइन बच्चे भी तुसीं फोन दे नाल कनैक्ट कर सकते हो। किवें भी तुसीं अरेंज करके तुसीं पर्सनली टीचर दे नाल गल कर सकते हो। जो भी तुहाडे डाउट होणगे तुसीं रिजोल्व अपने करवा सकते हो, ठीक है जी। डाउट दे असीं बहुत ध्यान रखांगे, क्योंकि कई अजिहे स्टूडेंट भी होणगे जिन्होंने पढ़ाई छड्डे 2-2 3-3 4-4 साल हो चुके हैं, तो उन्होंने एक स्पैशल सपोर्ट चाहिए डाउट लई, क्योंकि कैच करना थोड़ा औखा हो जाता है। तो असी डाउट सैशन प्रॉपर लैके आवांगे तुहाडे वास्ते, ताकि तुहाडा कोई भी डाउट जिहड़ा है वो बचे ना, ठीक है। हुण अगर तुसीं इस बैच दे विच रजिस्टर करना चाहुंदे हो तो तुसीं इस नंबर ते कॉल करना जे, ठीक है। नंबर देख लो 91 17 34 34 34, ठीक है, 9117 343434,
ठीक है जी। इस नंबर ते कॉल करो, तुसी रजिस्ट्रेशन करवा लो, अगर ऑफलाइन हो तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, ऑनलाइन हो तो भी रजिस्ट्रेशन करवा लो कि भाई असी ये बैच ज्वाइन करना जे। बैच जिहड़ा है भाई 21 तरीक तो शुरू हो रहा है, 21 अक्टूबर यानी कि अगले मंडे तो बैच ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 40 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਈਵੀਐਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਐਸਐਸਟੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ। ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਸਟਰੀਮਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਐਸਐਸਟੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੋ ਸਟਰੀਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ 2 ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਚ 'ਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।